Alright, let us now move on to fifth section of the question. We are given 29 upon 343. 29 upon 343. इस रैशनल नंबर की अगर बात करें तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन फैक्टर other than 1 and is of the form, ये जो नंबर है and is of the form p by q, where p and q are integers, and q is not equal to 0. Now ये जो नंबर है 29 upon 343, this number will have a terminating decimal expansion if the denominator 343 can be expressed in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, ठीक. else, और अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं आप, else it will have, else it has a non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन. ये कंसेप्ट अब आपको याद भी हो जाना चाहिए, इतनी बार हम इसको लिख रहे हैं. अब बस हमारा काम है जो डिनोमिनेटर 343 है उसको फैक्टराइज करना. तो आपको मालूम है 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको आप 7 का क्यूब लिख सकते हैं. इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m. ठीक है, is 7 cube is not of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, और अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं therefore इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. तो आप उसको लिख भी सकते हैं. hence 29 upon 343 has a non terminating repeating decimal expansion. So this completes our solution. Let us now move on to sixth section of the question. Let us now move on to sixth section. We are given 23 upon 2 cube into 5 square. Now it is in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. आपको एक रिजल्ट मालूम है क्या कि if x is equal to p by q be a rational number such that the denominator q is in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, then x has a terminating decimal expansion. x has a terminating decimal expansion. ये आपको कंसेप्ट मालूम है. तो अगर आप इस रैशनल नंबर को देखें, जो डिनोमिनेटर है आपका 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2, ये पहले से ही इस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में, 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m, इस फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है. इज इन द फॉर्म 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n is equal to 3. आप देख सकते हैं n के प्लेस पे 3 है and m is equal to 2. इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. आप उस चीज को लिख भी सकते हैं. हेंस 23 upon 2 cube into 5 square
हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब 23/2 cube into 5 square can also be written as 23/2 cube into 5 square, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा 23 into 5 is 115, 115 अपॉन 2 cube into 5 cube हो जाएगा, ये 5 square into 5 is 5 cube which gives us 115 अपॉन, पावर सेम है तो डिनोमिनेटर जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 into 5 होल क्यूब which gives us 115 अपॉन 5 to the 10, 10 का क्यूब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 1000। सिर्फ आपको डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करने, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 0.115। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं हेंस 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन था इज इक्वल टू 0.115, ये 0 पॉइंट है ये, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। हमने 6th सेक्शन कंप्लीट कर लिया। लेट अस नाउ मूव ऑन टू 7th सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। Let us now move on to 7th section of the question. The rational number given is 125/2 square into 5 to the power of 7 into 7 to the power of 5. Now, the given number is of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Again, recall one result. आपको एक result याद है जो पिछले सेक्शन में भी हमने लिखा था, क्या कि if x is equal to p by q be a rational number, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना चाहिए, such that prime factorization of q, prime factorization of q is not of the form, is not of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, then x has a non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 to the power of 2 into 5 to the power of 7 into 7 to the power of 5। तो ये एक्चुअली इस फॉर्म को रिजेंबल कर ही नहीं रहा। आप देख सकते हैं 2 to the power of 2 into 5 to the power of 7, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 7 to the power of 5 भी आ गया है, तो हम इसको बोल नहीं सकते कि ये रिजेंबल कर रहा है इस फॉर्मेट को। तो आप लिख सकते हैं इज not of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, और अगर इस फॉर्मेट का नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसके पास। आप लिख सकते हैं therefore 129/2 square into 5 to the power of 7 into 7 to the power of 5 has a non terminating repeating decimal expansion. This completes our solution. So we have covered up till section 7. अगर हो सकता है तो 8, 9, 10 खुद से कोशिश करिए, or else I am solving it. Let us now move on to 8th section of the question. The rational number given is 6/15. In the 8th section we are given 6/15. Now concept आपको मालूम है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। We know that let x is equal to p by q be a rational number, where p and q are co-prime, ये आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, such that the prime factorization of q जो डिनोमिनेटर है, the prime factorization
of q is of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, अब आपको ये याद भी हो गया होगा, आई होप सो, इतने सारे सेक्शंस में मैंने आपको बताया। अगर ऐसा है तब हम बोल सकते हैं देन x हैज अ, जो रैशनल नंबर x है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। ठीक, ये कंसेप्ट आपको मालूम है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो नंबर आपको गिवन है वो क्या है, 6/15। 6/15 जो है वो को प्राइम नहीं है, इट इज नॉट अ को प्राइम बिकॉज दे हैव अ कॉमन फैक्टर 3। तो पहले तो इसको लिखेंगे 6 को 3 इंटू 2, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर ये 3 से 3 कैंसिल करिए और ये हो जाएगा 2/5। अब 6/15 को आप 2/5 समझिए, नाउ इट इज अ को प्राइम। तो आप देख सकते हैं अगर 2/5 लिखूंगा तो हियर q इज इक्वल टू 5, जो डिनोमिनेटर है q, हम p/q लिखते हैं ना, तो q की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 5 के इक्वल। तो जो q आपका 5 है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power of 0 इंटू 5 to the power of 1। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि ये रिजेंबल कर रहा है किस फॉर्मेट को, 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m इसको, where n is equal to 0 and m is equal to 1 and both are non-negative integers. Therefore we can say that 2/5 or 6/15 has a terminating decimal expansion. उस चीज को लिख भी लेते हैं, which implies that 6/15 or 2/5 has a terminating decimal expansion। यहां तक तो बात पता चल गई, अब उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2/5 आपको डायरेक्ट पता है 0.4 होता है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं 2/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2/5 इंटू 2/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये न्यूमरेटर जाएगा 2 2 4, डिनोमिनेटर 5 2 10 और 4/10 होता है 0.4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उस चीज को एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेंस द डेसिमल expansion of 6/15 is 0.4. This completes our solution. Let us now move on to 9th section of the question.